When I walked out to back in the second test match, I did something different. Normally, one would look at the scoreboard. But this time, I had decided I will not look at the scoreboard. I would look at the clock. My back swing, the body movements, everything was not free flowing. मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए. ऐसे नहीं कि हर बार जाता तो वो रन्स होते थे, नहीं होते. योर पैशन विल लुक आफ्टर. मगर जिस समय आप उसे डिसरिस्पेक्ट करने शुरू करो, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर डाउनफॉल. Success is never guaranteed, but the efforts that you can put in to get to where you want to be, that can be guaranteed. That is in your hands. Hello and welcome to Unacademy. He is an emotion of a billion, a Bharat Ratna. Till there is life on this planet, his name will resonate everywhere. Sachin Ramesh Tendulkar. Sir, an absolute privilege to have you with us commemorating 10 years of Unacademy. Sir, I teach polity for the civil services examination, and I always tell my students about a date, 24th April 1973. It was on this date that Supreme Court gave a landmark verdict which saved India's democracy. And on this date, you were born, a man who saved India's cricket. You carried the expectations of every citizen. Let me clarify one thing. I did not save India's cricket. There were a number of heroes who played before me, and I wanted to emulate them. I wanted to follow their footsteps. Every generation will go out and give their best and lay a solid foundation. And on that solid foundation, my generation, the following one, the one who played before me, we all try and construct our bit and we pass it on to the next generation. So without, the former cricketers, the former greats, I don't think I would have been in a position to hold a cricket bat and would have had those aspirations to lift the World Cup. You need role models, and I've had many role models, many heroes who inspired me. But you carried the expectations of every citizen on your shoulders. It's good to do that because that means you've done something right in the past. There are two ways to look at it. I feel कि एक जो एक्सपेक्टेशन का जो एक टैग लग जाता है किसी के ऊपर, या एक बर्डन कहते हैं लोग, it is not a burden. It is about how you address it. It is all about आपका जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कि प्रेशर लेना है या एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ गए हैं वो किस वजह से बढ़ गए. एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव वे टू लुक एट इट, बिकॉज the way I see this, the expectations rose because of my past performances. People had belief in me. People had trust in my ability. Whatever I had done in the past, they enjoyed. And I enjoyed myself because, when there were some tight moments where, we were pushed in the corner, and there were moments where the guys who batted before me had done exceedingly well. But eventually what matters is how you are able to treat that particular moment and, construct an innings. For me, it was about constructing an innings on the solid foundation laid by my colleagues. But you were always calm and played this gentleman's game with Not its always dignity. calm. You never lost your cool even when you were नहीं, हम adjudged दिखाने out के लिए on बहुत numerous बार, occasions. क्योंकि opposition is reading your body language. But we're not talking about what you did in the dressing room. But on field you were calm, and that's the lesson for our students, how to stay calm at the time of the pressure of this exam. I think to focus more on the good things that have happened in the past, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं फेल होते हैं. It is not about सक्सेसफुल राइड. अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो आपको रेड सिग्नल लगता है, भाई गाड़ी को रोकना पड़ता है.
कभी कभी गड्ढे आ जाते हैं, कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, कभी सिग्नल पे रुकना पड़ता है और कभी कभी आपको हाईवेज मिलते हैं. तो यू नीड टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन. You know, when there were those moments where we were pushed in the corner, you had to wait and watch the other guys go through that patch, as we call it, purple patch. The bowlers also have purple patch, so you have to wait and watch. You have to give them respect, and that is what I learned at the start of my career. I was in Pakistan. I remember the first outing wasn't a great one, and I got out early. My back swing, the body movements, everything was not free flowing, and you can make out, that nervous energy was there. I got back to the dressing room. I was not so happy with that outing, and I thought possibly my last chance. क्योंकि इतना embarrassment हुआ था, मुझे खुद को ही embarrass feel कर रहा था मैं. तो I remember having a conversation with Mr. Chandu Bode, who was our coach, एंड ऑल्सो विद रवि शास्त्री. दोनों ने मुझे एक ही चीज़ बताई कि ना, रिस्पेक्ट करना. ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यू आर प्लेइंग वर्ल्ड क्लास मूवीज. ये ऐसे नहीं कि, क्योंकि मेरे लाइफ में प्रोग्रेस बहुत जल्दी हुई. स्कूल क्रिकेट से आई प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट. आई बिकेम द हाईएस्ट स्कोरर फॉर मुंबई रणजी टीम दैट सीजन. ईरानी ट्रॉफी थी, वहाँ पे मेरे 100 बन गए थे. देन आई वाज सिलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया एट द एज ऑफ 16. सो एवरीथिंग हैपेंड वेरी क्विकली. तो वहाँ पे आई जस्ट हैड टू लर्न फ्यू लेसन्स जो पहले सीखने मिलते हैं काफ़ी प्लेयर्स को. मुझे इंटरनेशनल सर्किट पे आके वो सीखने पड़ी. बट इवेंचुअली यू लर्न टू रिस्पेक्ट योर ऑपोजिशन व्हेन दे आर डूइंग वेल. ठीक है भाई, ये समय आपको बिलोंग करता है. आई विल वेट फॉर माई टाइम टू कम. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट मिस्टर वासु परांजपे, who had told me when I was under him in a camp in Indore, under 15 का कैंप था. वहाँ पे he said, Sachin, you watch the bowlers for some time and they'll watch you for the rest of the day. So ये एक गेम की जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो we learn to deal with all these things. सर आपने एक बार कहा था कि आप रिकॉर्ड्स को नहीं प्रोसेस को चेज करते हैं. बट सर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिकॉर्ड्स तो चेज करना पड़ता है कि कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो वापस अटेम्प्ट देने पड़े. सो हाउ वी डेवलप? देखो, रिकॉर्ड्स क्रिएट पहले नहीं होते, रिकॉर्ड्स बाद में क्रिएट होते. पहले कुछ करने के बाद रिकॉर्ड्स के, और कुछ करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है. सो फॉर मी इट वाज अबाउट कि हमारी टीम का गोल क्या है, हमारी टीम का क्या टारगेट है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस मैच में. वेदर यू आर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, बैटिंग थर्ड, बैटिंग फोर्थ, क्या टारगेट है, कैसे हम अचीव करेंगे एज ए टीम. क्योंकि हर प्लेयर अलग अलग रोल प्ले करता है टीम में. कोई अग्रेसर होते हैं तो कोई एक एंकर रोल प्ले करते हैं और कोई फिनिशर रोल प्ले करते हैं. तो हर प्लेयर का एक अलग रोल होता है. और रिकॉर्ड्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन. कोई रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता है, आप खेलते हो टीम के लिए, और रिकॉर्ड्स बनते हैं. कभी कभी आपको पता भी नहीं होता है कि रिकॉर्ड ऑलरेडी बन गया. जैसे कि जो हमारा स्कूल का एक रिकॉर्ड था, मेरा और विनोद तांबली का, हमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 हफ्ते तक पता नहीं था. बाद में किसी ने बताया कि तुम्हें पता है ये रिकॉर्ड है. सीरियसली, वाओ, दैट्स ग्रेट. स्कूल में थे, बहुत खुश हो गए थे, मगर रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहे थे. हम खेल रहे थे एन्जॉयमेंट के लिए. बिकॉज छोटा था तब से, आई वॉज पैशनेट अबाउट क्रिकेट और मुझे कुछ करना नहीं था लाइफ में. द ओनली थिंग आई नीडेड वॉज इंडिया कैप, और बाद में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता था. दैट वॉज माई ड्रीम एंड आई स्टार्टेड चेजिंग माई ड्रीम. आई डोंट थिंक ये रिकॉर्ड वगैरह के पीछे कोई भाग रहा था. सर मतलब हम आपसे इंस्पायर होते हैं और स्पेशली इस ग्रेटनेस को जब हम देखते हैं, पर मेरा एक नज़रिया ये भी है कि हम हमारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ग्रेटनेस अचीव करते हैं, लेकिन उस टाइम पे असली ग्रेटनेस तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कई बार हमारा लो फेज़ होता है उसमें हम कितना टिक गए हैं. ऐसे हमारे एस्पिरेशन, जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी जर्नी में कभी एक वीक अच्छी पढ़ाई कर ली, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर टेंशन होती है. तो मैं आपके ज़रिए से ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारा लाइफ का लो फेज़ होता है उस टाइम हमने अपने आप को कैसे संभालते हैं. मतलब देखो, मुझे लगता है कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल प्लेयर्स और
एवरेज प्लेयर्स, मुझे लगता है फेल तो सभी होते हैं, मगर जो सक्सेसफुल प्लेयर्स होते हैं वो गिव अप नहीं करते और अटेम्प्ट्स करते हैं. सो मैं यही कहूँगा कि नेवर टू गिव अप. सक्सेस इज़ ऑलवेज राउंड द कॉर्नर. हमें वो एक एडिशनल स्टेप लेना पड़ता है. हम बहुत बार सोचते हैं कि ना कि ये तो इट्स द एंड. इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट द डेड एंड. वो सिर्फ एक बेंड होता है. जब हम आगे जाते हैं तो हमको पता लगता है कि इसमें बहुत सारे रास्ते खुलते हैं. जब दूर से देखते हो तो वो रास्ता बंद दिखता है आपको, वो डेड एंड नहीं होता. क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है. सो आई वुड से कि जस्ट टेक दोज एक्स्ट्रा यार्ड्स और रास्ते खुलने लगते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट मैं कहूँगा कि थोड़े ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेयर्स वो ही करते हैं. वो थोड़ा एक दो स्टेप आगे जाके देखते हैं और उन्हें एवेन्यूज़ खुलते हुए दिखते हैं. एंड दे टेक यू टू योर डेस्टिनेशन, दे टेक यू टू योर टारगेट. सो माई मैसेज वुड बी वो एक दो एक्स्ट्रा यार्ड्स है, लुक टू कवर दोज यार्ड्स. Sir, you spoke of your tour to Pakistan when you almost thought that I will give up. Similar thing happened on your tour to Australia as well. What? No, I was never prepared to give up, but I thought मुझे और चांस नहीं मिलेगा How शायद. did you persist? बहुत बार लक की भी बात होती है कि आई विल नॉट से कि कोई भी एथलीट उसे लक का साथ ज़रूरी होता है, और जो सही समय पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड द सेकेंड टाइम व्हेन आई वेंट आउट टू बैट, whatever my seniors had shared with me, the coach, Mr. Bode, and Ravi Shastri was also there. Like I said earlier, that they both told me just to be patient. And when I walked out to bat in the second test match, I did something different. Normally, one would look at the scoreboard. But this time I had decided I will not look at the scoreboard. I would look at the clock. Because the discussion was, you spend some time there and things will change. So my target was half an hour. And I said, I'm going to hang around for half an hour. Once I had spent half an hour, the next step was, okay, can I spend half an hour more? And I kept looking at the clock. And then I suddenly realized that the first test match, I felt maybe the standard of playing is too high for me. I am not ready for this yet. Suddenly in the second test match, that thought process had changed. Second test match, I said, oh, I can deal with this. And this was only because I had spent more time. But this is about changing your strategy. Why do you attribute this to luck? Because if I had been dropped, I would have been, looking at the clock set in the dressing room and not batting them ready. So that is where, it wasn't in my hands to pick the playing 11. Someone else had picked the playing 11. So somewhere luck has to play the role. Correct. राइट, एब्सोल्युटली. सर, आपने अपना करियर 16 इयर्स की एज से शुरू किया है एंड आज आपके पास भारत रत्न एंड यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. ये एक नॉर्मल इंसान के लिए आई गेस पॉसिबल नहीं है. यू हैव पुश्ड योर बॉडी प्रोबेबली टू सुपर ह्यूमन लेवल्स एंड हमारे मीट यूजी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी को ही स्टडी करते हैं. तो हाउ डिड यू मेंटेन डिसिप्लिन अराउंड फूड, स्लीप, योर रूटीन, रिहैब, प्रैक्टिस? क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत स्ट्रगल करते हैं कि वो अपनी 8 आवर्स की स्लीप कैसे लें, उसके बीच में बैलेंस डाइट भी लें, बिकॉज इनकी जर्नी में पढ़ाई तो है बट साथ साथ में दे ऑल्सो हैव टू बी हेल्दी ऑल द टाइम. करेक्ट. तो मेरे करियर में भी वैसे ही शुरुआत हुई. आई रिमेंबर माई ब्रेकफास्ट इन स्कूल डेज यूज टू बी माई आंट. आई स्पेंट 4 years with my aunt and my uncle. And in the morning before going to school, I would sit in front of her on the floor और चाय का कप मेरे सामने आता था और वो डबल फोल्ड के हुए रोटीज़ आती थी, थोड़ा सा शक्कर और घी हल्का सा डाला हुआ, और वो रोल के हुए रोटी मैं चाय में डुबा के खाता था. एंड दैट वाज माय ब्रेकफास्ट. सो इन स्कूल डेज दैट वाज माय ब्रेकफास्ट. एज आई वाज एक्सपोज टू मोर थिंग्स इन लाइफ, थोड़ा डाइट चेंज करना पड़ा, क्योंकि स्कूल में चल जाता था कि कभी बिरयानी खाई, कभी सांबर राइस खाए, कभी बड़ा पाव खाए, कभी समोसा पाव खाए. ऑल दीज थिंग्स, पाव भाजी वगैरह, ये सब
चल जाता था, बट जैसे एक्सपोजर मिला, जैसे थोड़ा और नॉलेज हासिल किया, और वो पॉसिबल था जब आप दूसरे प्लेयरों के साथ बैठते हो, दूसरे फिजियोज, दूसरे ट्रेनर्स के साथ बैठते हो, तो देन यू नो you learn a lot about not just the game but अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए कौन सी सारी चीज़ें ऐड करती, जिम में कैसे जाके वर्कआउट करना है, स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब फिटनेस के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ ओनली फिजिकल फिटनेस, यस, नोबडी लुक्स एट मेंटल फिटनेस। एब्सोल्युटली। और ये सारी चीज़ें, एडिक्वेट स्लीप, वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, आई थिंक इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जो हम कहते हैं कि पीक परफॉर्मेंस आवर्स, उसके लिए किस समय पे आपको सोना है, किस समय पे जागना है, कौन से समय पे आपका फूड इनटेक क्या होना चाहिए प्री मैच, ड्यूरिंग द गेम, ये सब आस्ते आस्ते खेलते खेलते पता लगने लगा। और आई वुड से पता लगने लगा सेकेंड हाफ ऑफ माई करियर। फर्स्ट हाफ ऑफ माई करियर तो आई वॉज आई थिंक ऑल ओवर द प्लेस, जो भी दिखता था हम खाते थे, यंग बॉडी भी डाइजेस्ट कर लेती थी। मगर थिंग्स आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, और उसी के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो नई चीज़ें हम सीखते हैं उसका कॉम्बिनेशन लेके व्हाट कुड बी द बेस्ट आउटकम इज हाउ वी नीड टू मैरी दोस थिंग्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू। ऑफ कोर्स इससे हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। एंड जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने अपनी अंकल एंड आंट के बारे में मेंशन किया, जब भी कोई पर्सन सक्सेसफुल होता है तो नो डाउट उसका हार्डवर्क है, बट आई पर्सनली बिलीव कि उसके पेरेंट्स का या एक्सटेंडेड फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बच्चों के लिए तो ठीक है, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाट योर पेरेंट्स डिड राइट दैट आवर लर्नर्स पेरेंट कैन लर्न फ्रॉम। They did everything right for me. Honestly, blessed to be born in this family, क्योंकि life was about hardship for them. बस से ट्रैवल करना, ट्रेन से ट्रैवल करना, because both my parents were working, और मैं बहुत छोटा था तो मेरी मदर दूसरे डायरेक्शन में जाती थी। अगर ऑफिस इस डायरेक्शन में एंड वी आर स्टेइंग हियर, शी हैड टू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और मेरे अंकल और मेरे आंट के साथ मुझे वहाँ रखते थे पूरा दिन, एंड देन अगेन टेक द बस, go and work the whole day, come back again later on at night, pick me up, go home, cook food, and do the rest of the things what any housewife would do, and mothers कुछ अलग बने होते हैं, honestly. However much we thank them, it is never enough. I think ये सब हम realize करते हैं जब when we become parents. करेक्ट। And whatever my father, mother, both my brothers, sister, my uncle, my aunt, the entire family did for me. वो जितना भी यहाँ मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, it will never be enough. सारा लाइफ में मैं उनको थैंक यू कहूँगा तो भी it's not enough, because I was really fortunate, to have the team around me. And the greatest gift that my parents gave me in my life was the freedom to be what I wanted to be in life. मुझे क्रिकेटर बनना था, मुझे स्पोर्ट्स में हमेशा दिलचस्पी थी, और माई फादर बीइंग द राइटर एंड अ पोएट एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज कलीग्स वर स्कॉलर्स, बहुत सारे लोगों ने किताब लिखे हुए थे, ये वो। सो एक छोटे बच्चे को क्रिकेट एज अ प्रोफेशन उसका सिलेक्ट करने दें, दैट इटसेल्फ वाज अ बिग डिसीजन, अ करेजियस डिसीजन। आज के शायद पेरेंट्स वो कनेक्ट कर ना पाए, क्योंकि आज बहुत कुछ चेंज हुआ है। देयर आर मल्टीपल लीग्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स की, आप कबड्डी लो, क्रिकेट लो, बैडमिंटन, जहाँ भी फुटबॉल, जो भी स्पोर्ट पकड़ो, लीग्स फॉर्म हुए हैं, और वहाँ पे आप इन स्पोर्ट एज अ फ्यूचर आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं तो चांस लग जाएगा, आप मेहनत करो तो लग जाएगा। मगर टू थिंक लाइक दैट इन 80s and for a professor was a courageous decision, and to support, never did he once
बहुत बार होता है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो आप प्रेशर डालते हैं। हाँ मुझे ज़ीरो प्रेशर, मुझे सिर्फ एनकरेजमेंट थी और प्यार था। डांट वगैरह कभी नहीं। आई मीन आप डांट के फोर्स करवाते हो किसी को कुछ करने की, मगर वही प्यार से अगर समझाते हो किसी को, एंड वंस अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स देन यू नो इट्स देयर विथ यू फॉर एवर। डांट तो होती है, डर से आप उस समय के लिए आप कुछ कर सकते हो, मगर प्यार से लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी दे है एट होम, कि प्यार से समझाना है, डांट के नहीं। तो कभी दे नेवर शाउटेड एट मी, एंड दैट ऑल दीज थिंग्स कि मैं सारी शाम बात कर सकता हूँ उसके, बट टू बी ब्लेस्ड यू नो इन दिस फैमिली, कि बॉर्न इस फैमिली में हूँ, दैट इज अमेजिंग। Sir, it just occurred to me while hearing you. 1999, in the middle of our World Cup campaign, you lost your father. Then you traveled back. You came back, and at Bristol, I think you scored 130 odd against Kenya. It must have taken a completely different level of temperament to come out of that personal loss and deliver at the highest level. What was it? Difficult moment for me, the toughest moment of my career. I don't know. I'm lost for words. That moment was really tough. It took me a long time to accept that my father is no more alive. I always felt he was out on some work, because he would go for 3-4 days on work, and and then come back. And there were occasions where I did not see him for a while because he was out, and then I would be sometimes out on tours and all that. So it was one of those feelings, and I thought that he's going to be back some stage. And in fact, when I went back home also, when I saw him, I thought he's going to open his eyes some stage. But over a period of time, you come to terms that it has hit you, and then that was the case. So to leave my family in that state was really, really tough. But my entire family wanted me to go back and play for India, and that is exactly what even my father would have wanted. It was tough, but I went and I did. You raised your head. Yeah, it was, I don't know, like I said, I mean, even after 26 years, I find difficult to talk about it. Oh. This question was not asked to turn you emotional, but our students may also feel after a personal loss. How do we stay motivated to appear in the exam and compete? So students, it's tough. There's no formula to it, honestly. टाइम I mean, with these kind of personal losses, it's tough. I had my family support, and that's all I can say. I wanted to do it for the country and my family back. just to lighten this mood, your parents did not scold you. Is that you were not naughty? That's why? No, I was extremely naughty, and that's why I said I was blessed to be born in this family. I don't know how they maintain so much patience, because every evening there would be some complaint. We got broken windows. विंडो पेन किसी का टूटा हुआ है, पेड़ पे क्लाइंब कर रहे हैं, पेड़ के साथ हम नीचे गिरे हुए हैं, किसी के गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी है, all those kind of things. I was a difficult kid to manage. Do you follow your parents' footsteps while you are? I try. I can never be as good as them, but I try, क्योंकि मेरे सामने इतने अच्छे examples थे. हाँ I try. I do that. I think it's my duty to do that, and I try to the best of my ability. Yeah, so sir, I have one question for you. So I teach mathematics to JEE students. 16 साल के बच्चों को ही बेसिकली हम लोग पढ़ाते हैं. तो काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चे हम लोग को मिलते हैं हु बेसिकली हमें 2 साल का प्रिपरेशन होता है, जो रास्ते में थोड़ा सा भटक जाते हैं. फिर बेसिकली डिसिप्लिन, मतलब वो उसको डिसिप्लिन को बेसिकली वो ओवरसी करता है. सो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द like difference between talented Sachin and disciplined Sachin? I think talent is God given, and discipline is in your hands. So
उस टैलेंट के साथ मैं क्या करता हूँ ये मेरे हाथ में। और जैसे कि मैं बहुत बार कहता हूँ कि ना, देर आर गुड फील्डर्स, देन देर आर वेरी गुड फील्डर्स एंड देर आर ब्रिलियंट फील्डर्स। यू कैन नेवर बी अ ब्रिलियंट फील्डर। जैसे मैं बहुत बार मैंने जॉन्टी रोड्स का एग्जांपल दिया हुआ, क्योंकि मेरे करियर में मैंने देखा वो बेस्ट फील्डर रहा है। एंड आई फील फ्रॉम an ordinary fielder you can become a good fielder, from good you can become very good, but you can never become brilliant because that is God given talent. तो वो टैलेंट, सिर्फ टैलेंट लेके आप ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। उस टैलेंट को आप कैसे नर्चर करते हो, उस टैलेंट को आप कैसे रिस्पेक्ट करते हो, उसकी पूजा करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई रिमेंबर माई फादर टेलिंग कि ना, भगवान की ये देन है। हम ऑलवेज कहते हैं मराठी में, दोनों हाथाने जप है ना, तो दोनों हाथ से उसकी पूजा करो और उसको वर्शिप करो और उसको वैल्यू करो। so long as you are doing that and respecting your game, your profession, I hate calling profession, it's my fashion, पैशन। तो उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, योर पैशन विल लुक आफ्टर। मगर जिस समय आप उसे डिसरिस्पेक्ट करने शुरू करो, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर डाउनफॉल। टू नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ प्री इवेंट, टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दैट इज इन अ वे डिसरिस्पेक्ट। तो मुझे वो एक छोटा था तब से वो एक लेसन सिखाया गया था, वो एक मैसेज मेरे तक पहुंचा हुआ था और वो अंदर घुसा हुआ था। तो आई फेल्ट रेस्टलेस कोई भी कंपटीशन के पहले, बिकॉज मुझे हमेशा सारे बॉक्सेस टिक करने थे प्रिपरेशन में। तो बाद में परफॉर्म होगा नहीं होगा, व्हाटएवर, दैट इज़ नॉट इन माय हैंड्स। मेरे हाथ में क्या है कि वहाँ जाके मैं 100% कोशिश करूँ और जाने के पहले 100% तैयारी करते जाऊँ, बिकॉज एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रिप्रेजेंटिंग द नेशन। और ऐसे नहीं था कि कहीं भी आप, मुझे अगर कोई ऐसा एग्जीबिशन गेम भी खेलना है तो थोड़ा आप मेरे पल्स रेट चेक करोगे तो थोड़ा सा टेंशन होता है। दैट इज़ आउट ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर द गेम। सर या इन द एंड सर, लाइक बहुत सारे लर्नर्स हैं जो आपकी परसिवरेंस जो है, बेसिकली 24-25 साल का जो करियर है, बहुत ज़्यादा परसिवरेंस उसके अंदर लगता है। सो एनी लास्ट मैसेज टू आवर लर्नर्स विच यू वांट टू गिव? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन चेजिंग योर ड्रीम्स, द ड्रीम्स कम ट्रू। मगर उसके लिए एक विजन होनी बहुत ज़रूरी है। कि मैं जब बढ़ रहा था स्कूल में, तो मेरा एक ड्रीम था कि जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी मेरे हाथ में एक दिन होनी चाहिए इंडिया के लिए। तो उसके लिए आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचते हो उस गोल तक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और सक्सेस इज़ नेवर गारंटीड, बट द एफर्ट्स दैट यू कैन पुट इन टू गेट टू वेयर यू वांट टू बी, दैट कैन बी गारंटीड, दैट इज़ इन योर हैंड्स। सो मैं यही कहूँगा कि ना, डोंट टेक शॉर्टकट्स। बहुत बार चैलेंजेस आएंगे, फेस ऑल दोस चैलेंजेस। मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए, ऐसे नहीं कि हर बार जाता तो रन्स होते थे, नहीं होते, मगर फाइंड वेज, हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। प्रॉब्लम्स तो हर जगह होते हैं, बहुत कम लोग सॉल्यूशंस पे फोकस कर। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, you find more avenues to get to your destination. But वो mindset होना बहुत ज़रूरी है। तो my message would be, don't give up, chase your dreams, they'll come, they'll give you a reason to smile. आप भी smile करो तो they'll give a reason to smile, honestly. Yes sir, thank you sir, thank you.